Namaste, good morning students, welcome to M Science. Before this, on our channel, you have learned about some chapters of class 5 and class 8, as well as the last video on our channel, we have uploaded about the facts. That means in that fact series, you will learn so many new facts there. In the last video, we have discussed the facts about the spider. Okay, so to watch the previous videos on our channel, just click the links given in the description of this video. So today we are going to start the chapter from class 10 NCERT science and class 8 CBSE science. In that we are going to learn about the metals and non-metals. So before learning about this metals or non-metal, we will just discuss on the matter. मतलब because you know that these metals and non-metals are the one of the type of the matter. ये एक matter का type है. लेकिन what is the matter? You know that the substances, if you observe carefully in around us, then you will find there are so many living and non-living things are available, right? For example, the pen in my hand now, the board is there. These are the non-living things, but this pen and this board are made from the different types of substances, right? The clothes are made from different types of substances. The mics are made from different types of substances. Even you can say that if you have a school bag there, in that school bag, there are so many substances, book, notebooks, then pencil, eraser, then sharpener, right? Your compass. So we can say even our school bag. So all that things are made from the different substances. So these different substances are called as the matter. इन्हीं को क्या कहा जाता है? Matter कहा जाता है. So what's the matter? Matter are the substances from which the objects are made up. जिन substances से objects बने होते हैं, उन्हीं substances को matter कहा जाता है. So matter has 4 types. Matter को कितने types है? 4 types है. So वो है elements, compounds, mixture and alloys. So ये element क्या होते हैं? Element जो होते हैं, elements are the simplest form of the matter. मतलब इनमें सिर्फ एक ही टाइप का मैटर होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं. एंड एज दे हैव कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इन देम, so we can say we cannot separate the two substances from the element by any physical or the chemical mean. हम उनको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते. दिस एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी मेथड. कोई भी मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज कंपाउंड्स. कंपाउंड जो होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ मैटर मेड फ्रॉम 2 or more substances. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कंपाउंड्स में आप बोल सकते हो, कंपाउंड्स H2O इज द कंपाउंड. H2O जो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है. देन CO2, द सिंपल एग्जांपल्स आई एम टेकिंग हियर. CO2 ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज मेड फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन. देन अनदर कंपाउंड इज देयर, वी कैन से दैट NaCl, राइट? NaCl एक कंपाउंड है, that our sodium chloride table salt that we are eating every day. So these all are the compounds. So that means we can see the compound जो होता है वो दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे कि शुगर, राइट? उसमें हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड जो होते हैं दे आर मेड फ्रॉम द 2 or more substances. तो इस टाइप के मैटर को कहा जाता है कंपाउंड्स. ओके, देन मिक्सचर्स. अब आप इसमें देखोगे H2O लिखा गया है. H2O का मीनिंग क्या हो गया? H2O. H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का सिंगल एटम. देन यहां पर कार्बन का सिंगल, ऑक्सीजन के 2. NaCl में सोडियम का एक, क्लोरीन का एक, राइट? इन दैट वे वी कैन से उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है. लेकिन आप इसको अगर ऐसे लिख दोगे NaCl2, तो ये जो है ये कोई कॉमन सॉल्ट नहीं रहेगा. ये केमिकल फॉर्मूला कॉमन सॉल्ट का है नहीं, मतलब ये डिफरेंट सब्सटेंस बन गए. तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का या कंपोनेंट्स का कोई भी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता. जैसे कि टी, यू नो दैट टी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द मिक्सचर. देन यू नो भेल वी आर ईटिंग, वो जो भेल हम खाते हैं वो भी एक मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है. बिकॉज उस मिक्सचर में किसी को ज्यादा तेज खाना पसंद है, किसी को कम तेज खाना पसंद है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो तेज है, मतलब जो मिर्ची चिली पाउडर हम ऐड कर रहे हैं, वो चिली पाउडर का प्रोपोर्शन दोनों भेल में अलग अलग हो गया. मतलब उसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता. किसी को चाय जो होती है, मतलब टी जो होती है, ज्यादा स्वीट पसंद होगी, किसी को कम स्वीट पसंद होगी, राइट? तो इससे हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर में इन कंपोनेंट्स का कोई भी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता. एज देयर प्रोपोर्शन नॉट फिक्स, देन दे आर कॉल्ड एज द मिक्सचर. इन द एलॉयज, यू नो दैट बेसिकली एलॉय जो होते हैं वो मेटल नॉन मेटल से बने होते हैं, या फिर दो मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे कि यू नो दैट ब्रास होता है, राइट? ब्रास जो होता है वो होता है कॉपर और जिंक का, राइट? ब्रास जो बना है वो कॉपर और जिंक का क्या है? एक एलॉय है. और इज देयर ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टीन का एलॉय है. सो इन दैट वे वी कैन से
as these different alloys, mixtures and compounds are available, but elements are different from them. एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. व्हाई? बिकॉज एलिमेंट्स आर मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. इसमें आपको दिखाई दे रहा है कंपाउंड्स में, कंपाउंड में क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारे एलिमेंट उसमें आते हैं, दो या दो से ज्यादा. लेकिन जिसमें एक ही एलिमेंट आता है उसे कहा जाता है, जिसमें एक ही सब्सटेंस आता है उसे कहा जाता है एलिमेंट. तो एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट के बहुत सारे एग्जांपल है, बट वी विल डिस्कस नाउ ये जो एलिमेंट्स है ये तीन ग्रुप में फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं. सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स देन? Elements are classified into main two groups, and as the properties of some new substances are just discovered now, then some substances are found that metalloids as well. कुछ substances metalloid भी मिल चुके थे. मतलब अभी metals क्या होते हैं? You know that metals की कुछ physical properties होती है, that today we are going to learn. Okay, the non metals की opposite properties होती है metals के, and ये metalloids क्या होते हैं? So let's take some examples of the metal non metal now. मेटल और नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे. नाउ सी, सबसे पहले तो मेटल्स के एग्जांपल देखेंगे. यू नो दैट मेटल्स क्या होता है? मेटल्स ऐसे होते हैं, यू नो ये जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट्स आर मेड ऑफ द एटम्स सारे. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आवर बॉडी इज मेड फ्रॉम द सेल्स, देन इफ वी आर कटिंग द वुड विद द सॉ, देन वी आर गेटिंग अ sawdust there. So that time we can say that wood is made from that small particles of the sawdust. So in that way, elements, that means metal, non-metal and metalloids, these are also made from the atoms, and we know that atoms are what? Atoms are the complete and fundamental unit of the substances, right, of the element. So ये जो metal है, ये metal कौन से होते हैं? Basically you are using so many metals there. For example, you know that copper you are using, copper, Cu, right? इसका कपरम जो लैटिन है उससे इसका सिंबल लिया गया है कॉपर. देन एल्यूमिनियम यू आर यूजिंग, राइट? देन फेरस मतलब आयरन, आयरन हम यूज कर रहे हैं बिकॉज आर्टिकल्स इन अवर हाउस आर मेड फ्रॉम बेसिकली दिस थ्री मेटल्स देयर, राइट? ये कॉपर जो होता है वो हमारे घर पे उससे वेसल्स बने हुए, यूटेंसिल्स बने हुए, एज वेल एज वी कैन से इट इज अवेलेबल इनटू द इलेक्ट्रिक वायर्स. एल्यूमिनियम इज आल्सो अवेलेबल इनटू द इलेक्ट्रिक वायर्स, राइट? देन फेरस जो होता है आयरन, द विंडो ग्रिल्स, देन डोर ग्रिल्स, ऑल आर मेड फ्रॉम द ferrous, right? You know, also we are using so many metals. Basically we can say the gold and silver are there, right? जो होता है गोल्ड, Au, औरम नाम से इसको लिया गया सिंबल Au, एक गोल्ड. देन अर्जेंटम, Ag, ये क्या है? सिल्वर है. सो वी कैन से दिस गोल्ड एंड सिल्वर वी आर यूजिंग फॉर ऑर्नामेंट्स, राइट? सबके घर में ये सारे मेटल्स अवेलेबल होते हैं, तो दीज आर द कॉमन मेटल्स दैट वी आर यूजिंग डेली. देन लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल. अब ये नॉन मेटल कौन से होते हैं? यू नो दैट बेसिकली द गैसेस लाइक कार्बन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है? ये एक नॉन मेटल्स है. जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है. ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि देयर आर सो मेनी नॉन मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल इन अराउंड अस, राइट? देन वी कैन से मेटलॉइड्स. एक नया वाला पार्ट आता है मेटलॉइड. अब ये मेटलॉइड क्या होते हैं? दिस मेटलॉइड्स आर बेसिकली, यू नो दैट these are the type of matter which are showing the some properties from the metal and some properties from the non-metal. That means these metalloids have the properties of both metal and non-metal. तो उसमें कौन से होते हैं? तो उसमें बोरॉन, राइट? देन सिलिकॉन, इसमें बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स भी अवेलेबल है. तो ये कुछ एग्जांपल्स अभी हमने देख लिए मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के. तो बेसिकली आपको पता है ये जो एलिमेंट्स है, दीज एलिमेंट्स आर वेरी फैमिलियर विद अस, राइट? So now today we are going to start learning about the physical properties of the metal and non-metal first, and after that we will learn some chemical reactions, that means the chemical properties of metal and non-metals, and after that we will learn about the metalloid. So now let's start learning about the physical properties of the metal. Okay, अब ये metals की physical properties क्या क्या होती है? Now see, physical properties of metals. metals की physical properties क्या होती है? metals and non metals both we will learn together. metals and non metals, right? तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आज हम लर्न करने वाले. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, यू नो दैट इफ यू ऑब्जर्व द मेटल केयरफुली, अगर आप मेटल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड सम प्रॉपर्टीज इन दैट. यू नो, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम अभी डिस्कस करेंगे. जस्ट अ मिनट. नाउ सी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज लस्टर. ये क्या होती है? लस्टर. अब ये लस्टर का मीनिंग क्या होगा? ये प्रॉपर्टी क्या है जो मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है? आई एम टेलिंग यू, लस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और इसे ही कहा जाता है मेटेलिक लस्टर. सो व्हाट इज दिस लस्टर? लस्टर मींस शाइन. लस्टर का मीनिंग क्या होता है? शाइन. यू नो दैट इफ यू पॉलिश एनी मेटेलिक सरफेस, so you can find
दैट मेटल कैन शाइन देयर, वो जो मेटल होते हैं वो शाइन करते हैं, वो चमकते हैं, राइट? मतलब उनकी जो चमक होती है उसे ही कहा जाता है लस्टर। एंड इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप मेटल्स के बारे में देख रहे हो, मेटल्स को पॉलिश करोगे दे कैन शाइन, बट इफ यू आर रबिंग और इफ यू आर पॉलिशिंग द नॉन मेटल्स देयर, तो कोई भी नॉन मेटल जो है वो इस तरह से शाइन नहीं करेगा लाइक द मेटल्स, बिकॉज दे आर डल इन नेचर। वो क्या होते हैं? डल होते हैं, उनमें डलनेस होती है, वो डल होते हैं, वो शाइन नहीं करते। ओके, तो बेसिकली मेटल्स देखो आप, सिल्वर, गोल्ड, दे आर ऑलवेज शाइनिंग, राइट? एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी प्रेशियस एंड वी आर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स फ्रॉम इट, राइट? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अबाउट द लस्टर देयर। मतलब क्या होता है कि लस्टर जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की है, एंड नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता, दे आर डल। गॉट इट? तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉट ऑफ द नॉन मेटल्स। ओके, नाउ सी देन सेकेंड प्रॉपर्टी। अभी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी? दैट इज डक्टिलिटी। उसे कहा जाता है डक्टाइल। मतलब मेटल जो होते हैं ना, metals are ductile. So what is the ductility of the metal or the ductile? Why they are called as the ductile, and why the non-metals are non-ductile? Non-metals non-ductile क्यों होते हैं? Because let's take the example of some metal and non-metal now. So just take the example of your electric wires. You know that जो electric wires हमारे घर में लगी होती है, just take the example of that. इन इलेक्ट्रिक वायर्स में क्या होता है? बेसिकली उसके ऊपर रबर का इंसुलेशन आपको दिखाई दे रहा है, एंड अंडर दैट इंसुलेशन यू कैन, इनसाइड दैट इंसुलेशन यू कैन फाइंड देयर इज अ मेटेलिक वायर्स। उसमें कॉपर या एल्यूमिनियम से बनी जो वायर्स होती है, दैट वी कैन ऑब्जर्व देयर। सो ये जो वायर्स होती है, दीज आर मेड फ्रॉम द मेटल्स। दैट मीन्स मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, राइट? मेटल्स के हम थिन फिलामेंट, थिन वायर्स उससे बना सकते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक द थिन वायर फ्रॉम द वुड। वुड से बन सकता है इस तरह का वायर। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चारकोल, जो हमारे घर में बनता है, व्हेनेवर वी आर बर्निंग अ वुड देयर, तो वो जो चारकोल बन जाता है, उसको आप बीट करके देखो, वो आपको एक वायर में मिलेगा क्या? नो, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू पाउडर ऑन हैमरिंग। आप उसको अगर हैमर करोगे तो वो जो कोल है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर लाइक द मेटल्स। So this is the property of metal. So how can we define the ductility? Ductility is the property by which metals can be drawn into thin wire. Metals को हम क्या कर सकते हैं? thin wire में convert कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को मेटल की कहा जाता है ductility, और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती। So metals are ductile and non metals are non ductile. Got it? Now see the next property, that is malleability. सो मेलेबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज ऑल्सो ऑफ द मेटल, नॉट ऑफ द नॉन मेटल। अब ये मेलेबिलिटी क्या होती है? सो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्ट और बीटन इनटू थिन शीट। मतलब हम मेटल्स को एक थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो दैट फॉर एग्जांपल वी हैव अ आयरन शीट्स देयर, जिनको हम टीन कहते हैं, राइट? उससे हम टीन शीट बनाते हैं फॉर पार्किंग और फॉर द, वी कैन से फॉर द शेड्स ऑफ द कैटल्स एज वेल। तो उन सब चीजों में हम वो जो मेटल शीट्स यूज कर रहे हैं, बेसिकली आयरन शीट्स आर दैट। सो आयरन को हम शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इवन यू नो दैट वी हैव अ वेरी थिन फॉइल्स, that means thin sheets of the metal, that aluminum, silver, that sweets we are eating which has the silver coating over there. So that is what, that is the foil made from the silver. मतलब हम मेटल से इतना, that, और मोस्ट मेलेबल जो मेटल है वो सिल्वर ही है। सिल्वर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी शो करने वाला एलिमेंट है या मेटल है। मतलब सिल्वर का सबसे थिन फॉइल हम बना सकते हैं। और ये जो हमने डक्टिलिटी देखी थी, डक्टिलिटी में सबसे ज्यादा डक्टाइल जो है वो है गोल्ड। गोल्ड का आपको पता है, गोल्ड की डक्टिलिटी इतनी ज्यादा है, ओनली फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ अ 2 किलोमीटर वायर। 2 किलोमीटर लंबी तार हम 1 ग्राम गोल्ड से बना सकते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट डक्टाइल मेटल कॉल्ड एज द गोल्ड। और हाईएस्ट मेलेबल कौन सा है? इट्स अ सिल्वर। सिल्वर की सबसे ज्यादा थिन शीट हम बना सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल। चारकोल का एग्जांपल ही ले लो। चारकोल को अगर आप बीट करोगे और उसको शीट में कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे, यू विल गेट अ थिन पाउडर ऑफ इट। आपको उसकी एक, यू विल गेट अ फाइन पाउडर ऑफ इट। आपको उसकी फाइन सी पाउडर मिल जाएगी, बट यू विल नॉट गेट द शीट ऑफ द चारकोल। दैट्स व्हाई मेटल्स आर showing the ductility and non-metals don't have the ductility in them and malleability as well, right?
तो मेटल्स और नॉन मेटल जो होते हैं, मेटल्स में डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी दोनों होते हैं और नॉन मेटल्स में मेलेबिलिटी डक्टिलिटी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती. नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. So next property of metal is that conductivity. नई जो property है that is the conductivity. So this conductivity we will discuss with reference to the 2 points, right? तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले electricity और after that we will discuss about the heat या फिर temperature, right? So ये जो property है conductivity, what is this property conductivity? Okay, conductivity is the property of the metal or non-metal through which they can conduct heat and electricity through them. That means, और ये जो conductivity, this conductivity is the property of metals. ये भी जो property है, this is also the property of metal. This is not the property of posed by the non-metal. ये non-metal की property नहीं है. Okay. Now see, the conductivity is the property by which the metals can conduct heat or electricity through them from one place to another. For example, just take example, for there is a switchboard, right? Or on that switchboard, if we are connecting the pin, so that pin is connected to the wire and that wire finally connected to the electric bulb or any electrical gadget there. So whenever we are just on that gadget, so what will happen? That gadget will run there. That means वो जो electricity उस switchboard से हमारे electrical gadget तक जा रही है, what is that? That is the conductivity. और वो conductivity कौन कर रहा है? Who is conducting that electricity? What is conducting that electricity? That electricity is conducted by the electric wires which are made from the metals, not from the non-metals. आप बोलोगे सर उसके ऊपर तो वो जो ग्रीन रेड ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है, that insulation is only for protection of us from getting electric shock and it is made of a bad conductor of electricity. वो एक poor conductor से बना होता है जो कि रबर या प्लास्टिक का मटेरियल होता है, राइट? So basically, metals have the property to conduct heat and electricity from one place to another. Let's take the example of heating. देखो, अगर आप heating का एक example लोगे, for example, if we are just lighting a candle here, right? This is the candle and this is the lighted one now. Okay, ये lighted है, मतलब हमने candle को जला कर रखा है, right? So we have a candle here and now if we are taking a iron rod, अब हम क्या कर लेंगे? एक iron rod लेंगे इस तरह से. Okay, there is a insulated handle to hold that iron rod there. Now what we have to do, we are just that before taking this iron rod over the flame, so what we have to do, we just have to take the wax there. एक wax हमें लेना है जो आपको कैंडल से मिल जाएगा आसानी से. एक wax को लेना है और wax पे आपको क्या करना है, you just have to stuck some iron nails over there. कुछ iron nails जो होंगे वो इस तरह से आपको उसको wax के हेल्प से स्टक कर देना है. Then what will happen if we are bringing this iron rod over the flame? So it will start heating from this end. यहां से वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? और जैसे ही वो हीट होना स्टार्ट होगा, उसकी जो हीटिंग है वो धीरे धीरे रॉड की तरफ पास होते जाएगी, राइट? सो यू नो व्हाट विल हैपन, as we are heating it continuously, this iron nails will fall down one by one. Why? Because due to the heating reached into the iron, what will happen? This wax will melt and they will fall down. So in that way we can say that metals are conducting heat from one end to another. So metals have this property to conduct the heat, but non-metals cannot conduct the heat. Instead of this iron rod, if we have taken a wooden stick, then what will happen? It will burn, but we will not get the burn here. हमें कोई भी hotness या temperature यहाँ पर feel नहीं होगा, लेकिन वो खुद यहाँ पर जल जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स में कंडक्टिविटी नहीं होती. नॉन मेटल्स कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कैरी नहीं कर पाते. They don't have the property to conduct the heat and electricity, right? Now see, so this is all about the properties of metal and non-metal, that luster, ductility, malleability and conductivity. Okay, now see the next properties of the metals and non-metals. Now we have seen the 4, then the 5th property is there. This property is called as the hard and brittle. So this is the hard and brittle. अब ये hard and brittle क्या होते हैं? Basically, you know that hard means they are stronger, right? For example, if we are taking any iron nail and the chalk is there, so which will be hard? So we can say ये जो metals and non-metals होते हैं, तो metals में property होती है hardness. They are not the brittle one. If you are taking example of chalk, then you know chalk is the brittle, not the hard one.
but the iron nail is the hard, not the brittle one. That means if we are, that just we are just holding an iron nail in our hand and we are just releasing them down, right? जैसे हम उसको release कर देंगे, what will happen? The iron nail will not be break. If we are just releasing the chalk there, then what will happen? The chalk will break and falling on ground. So in that way we can say metals are hard and non-metals are brittle. Basically if we are taking a iron ball, एक iron से बना हुआ ball लेंगे और उसको हम hammer करेंगे, okay, with the same force which we are going to be hammer to the piece of charcoal as well. तो उसको अगर आप hammer करोगे, so it will get convert into the powder very soon. चारकोल जो होगा उसको हैमरिंग करने पर वो फट से पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा. बट आयरन बॉल अगर आप ले रहे हो या फिर आयरन नेल ले रहे हो, तो इट विल नॉट गेट कन्वर्ट इनटू द पाउडर, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द वायर और शीट. सो इन दैट वे वी कैन से that metals are hard and non-metals are brittle. So now see the next property of the metal and non-metal, that is density. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लर्न कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में. अब ये डेंसिटी क्या होती है? सो वी नो दैट डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, राइट? बिकॉज दैट मींस ये जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि ऑल द डेंसिटीज आर कंपेयर्ड ऑलवेज विद द डेंसिटी ऑफ द वाटर. उनको वाटर के डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है. सो यू नो दैट फॉर एग्जांपल मेटल का एक आयरन नेल का एग्जांपल है, राइट? वी हैव अ आयरन नेल देयर. एक छोटे मीडियम साइज का आयरन नेल हमारे पास है विच इज ऑफ द 2 इंचेस. 2 inches का एक iron nail हमारे पास है, and if we are throwing that iron nail into the water, then what will happen? It will sink or float. Obviously, it will what? It will float on that, right? No, it will sink into that. So as that iron nail is sinking into that, so we are coming to know that the iron is having a higher density than that of the वाटर. मतलब आयरन की जो डेंसिटी होती है वो उस वाटर के डेंसिटी से क्या है? ज्यादा है. एंड दैट्स व्हाई इट इज सिंकिंग इनटू दैट. अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होती है, फॉर एग्जांपल अ वुडन स्टिक इज देयर. कोई भी एक वुड की स्टिक ले लो जो कि नॉर्मल साइज में होगी 1 मीटर या फिर हाफ मीटर की, राइट? और उसको आपको क्या करना है? पानी में फेंक देना है. देन व्हाट विल हैपन? इट विल सिंक और फ्लोट. It will float on it. So why it is floating? Because the density of that wood is less than the density of water. So we can say metals have the higher density and that's why they are sinking into the water, and non-metals have a very low densities, right? So that's why they are floating on the water. So this is the property called as the density about the metal and non-metal. Now see, the next property of metal and non-metal is that melting and boiling points. Melting point and boiling point. मतलब melting और boiling point क्या होते हैं? We know that the temperature at which the substances start to melt, it is called their melting point, and the boiling point is what? The temperature at which the substances are starting their boiling. That melting point of the water, it's a 0 degree Celsius, and what the boiling point of the water, it's a 100 degree Celsius. So in that way, like the water, there are so many substances having their melting and boiling points. So ये जो melting और boiling points होते हैं, ये किन में अवेलेबल होते हैं? बेसिकली यू नो दैट सब मेटल्स में, सारे मेटल्स में melting और boiling point होते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं बेसिकली मेटल्स हैव द हायर मेल्टिंग एंड नॉन मेल्टिंग पॉइंट, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाईएस्ट नहीं होते. दे आर हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आयरन. अभी आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वी नो दैट इट्स टू हाई एट यू नो दैट 1538 डिग्री सेल्सियस, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट? इट्स अ 2862. इतना हाईएस्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट भी है. मतलब ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं, और एज कंपेयर टू दिस मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द एनी प्लास्टिक टॉय एंड द मेटेलिक टॉय and start heating them both on an equal temperature. Then what will happen? Which will melt first? Obviously plastic toy जो होगा वो पट से मेल्ट हो जाएगा, because we know that if we are taking that plastic toy just near to the flame of the candle, so what will happen? They are starting bending from that. That means वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं on a such very low temperature. So we can say melting और boiling point जो होते हैं, they are very high into the metals and very low into the non-metals. Got it? So this is the property of the melting and boiling point of the metals and non-metals, and all these are the physical properties. Okay, we are discussing now. So
Let's see the next property now. Next and the last property of the metal and non-metal that we are going to discuss today. See, that is the property called as the sonority. That means metals जो होते हैं ना, metals are sonorous. ये sonority property करता है. This is the property to producing the sound. You know that. That means if we are strucking the metal, अगर आप metal को struck करोगे, तो वो metals जो होते हैं, they can produce the sound on strucking them. मतलब कोई भी metal, for example, you know that basically the bells in the temples are made from the metals. So metals से बने होते हैं, basically the copper or the iron and the you know that the electric bells now which are available in our school. So that metals are that bells have a metallic gong over there. मतलब metal का एक हेमिसर्कुलर एक पार्ट वहां पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक गॉन्ग. और जैसे ही वो स्ट्राइकर उसको स्ट्रक करता है तो व्हाट इज हैपनिंग, they are producing the big sound. So we can say metals are sonorous. So property of producing the sound in the metal called as the sonority of the metal. So metal से ऐसे sound produce कर सकते हैं. Why? Just tell me why there is the bells are not made from the plastic. Why that bells are not made from the wood? Because wood और plastic जो है they are the non-metals. So वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते. दैट मींस दे डोंट हैव द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज द सोनोरिटी. मतलब नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस एंड मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स में साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है बट नॉन मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती. राइट. सो इन दैट वे वी हैव डिस्कस्ड many properties of that, basically 8 properties, the 8 physical properties of the metal and non-metal. So in the next part of this we will learn some chemical reactions based on the metals and non-metals.